Good morning, everyone. Welcome to this new lecture of Transportation Engineering 2. As you all know that we are dealing with the airport engineering, which is the fourth unit of our Transportation Engineering 2 syllabus. So we are in the fourth unit of TRE 2 syllabus. So in previous lecture we saw what are the important points to be considered while selecting an airport site, which was airport selection points. Okay, so we have seen the different points over which we can select a proper airport site, okay, which is feasible. So today we will move on to our next topic, that is one of the most important topic, that is runway orientation. So runway orientation is one of the most important factors to be considered while selecting an airport site. Orientation means proper location of runway. Okay, orienting the runway, it means placement of runway. Okay, the basic meaning of orientation here is placement of runway, means in which direction runway should be placed in airport site. So this placement of runway means orienting the runway in different direction and finding out which is the most suitable direction for runway. Now we will see what is basically runway is and what is mean by orientation. So let's move on. See what is basically runway here is runway is rectangular area on an aerodrome used for landing and takeoff. As you all know what is runway. Okay, it's like a rectangular portion like this. Like a rectangular portion like this. Okay, rectangular portion like this over which plane usually land and also take off. So this strip is called as runway strip. So it's like a rectangular area on an aerodrome. We have seen what is aerodrome. It is a part of a airport which is have different facilities like terminal building. Okay, so this is aerodrome is nothing but airport. Okay, so rectangular area on an aerodrome used for landing. The aircraft land in this strip and also take off. So this is called as runway strip. Okay, basically this is runway strip. Now next is runway orientation. Okay, so runway orientation, if you I give you an example. So I'll give you an example. For example, this is an airport site. Okay, and there are different things like here is terminal building and some of the buildings are here. Okay, there is an apron area, something like this. Okay, and suppose suppose okay, these are the buildings, and suppose this area belongs to the runway. Okay, so for example now you have to orient the runway. Okay, you have to give the runway proper orientation. So proper orientation means whether you will provide runway like this, like this. Okay, okay. So orientation of runway, whether runway should be like this or this. Okay, you have to decide. Okay, the orientation, the direction. Okay, whether the aircraft will, so orientation basically means whether the aircraft will come from this direction and move on, take off from this direction. Okay, or it will come from there. Okay, so this basically the orientation means. Okay, whether the runway strip will be in this like this or whatever the proper feasible direction. Okay, so this is called runway orientation, whether the runway should be like this or it may be like this incline. Okay, this incline may be like this. Okay, so this is basically runway orientation. Okay, to give proper direction or location of runway. Okay, so this is called runway orientation, placement of runway strip in proper direction.
So how will you place runway strip in this direction? That is the most difficult thing in airport layout. Okay, and the most important one also, because this orientation can identify or can be helpful for designing of this building. Okay, whenever the construction of airport start, the first thing is runway orientation. After this runway orientation, this terminal building etc is constructed. The first thing is to construct the or to locate the runway orientation, or to give runway proper direction or orient the runway in proper direction. So this is called runway orientation. Okay, the proper direction of runway strips. After this, the construction of or the placement of terminal building start. Okay, the first thing is runway orientation. Okay, so that's why the site selection is very important, and the placement of runway is usually take place after the wind data. The all the wind data is collected, and depend upon that wind data, the runway placement is usually carried out. Okay, so this placement of runway or orientation of runway is very important. So next is runway orientation is important in airport planning. As I told you, airport planning, runway orientation is the most important thing. After runway orientation, other facilities are constructed. Current practice is to lay out a runway in the direction of prevailing wind. Wind force can be utilized. We will see what is this prevailing wind and all this thing. Okay, we will see in detail. Direction of runway controls the layout of other facilities. As I told you, the direction of runway controls the layout of other facilities like passenger terminals, taxiway, aprons, road, parking, etc. Okay, after runway construction, we construct this terminal building, taxiway, etc. The first important, the most important thing is runway orientation. Okay, runway orientation, where in which direction the runway is provided. Okay, in what is the best location of runway. Okay, so that is the most important thing. And next here is data. Now suppose you will have to orient the runway. So what are the important data we should collect for orienting the runway? First is study of maps. Okay, study of maps, what whether the area is flat. Okay, and the usual profile of ground. So map or area and contour, everything is studied in detail before orienting the runway. So first thing is map or area and contour. These contour lines, everything is studied in detail. The longitudinal profile, okay, of that particular area, whether the slope is there, everything is studied in detail. Okay, for runway orientation. So this is the first thing and the very important. The next one is wind data. Wind data usually help in providing the direction of runway. Okay, so what are the data to be collected for wind, especially for wind? Like direction of wind, duration of wind, and intensity of wind. Direction of wind means whether the wind is flowing from north to south, south to north, east to west, west to east. This whole thing is studied. And the duration means how many time, okay, or from how much duration the wind flows in particular direction. Okay, the duration of wind. For example, from north to south, if the wind flows for hours, then it is considered to be maximum. Okay, so maximum duration is usually determined. The duration of wind. Okay, in how much for how much time the wind usually blows in a particular direction, that is important. Next thing is intensity of wind. Intensity of wind is usually calculated in kilometer per hour. So intensity of wind is also very important. So these important data, the direction, the duration, and intensity of wind is very important for orienting the runway. Okay, wind direction is variable and keeps on changing throughout the year. As you all know that the wind does not blow in the same direction for years. Okay, it changes, it varies with the time. And wind data can be obtained for 5 to 10 years. Now see how much the data is collected. From 5 to 10 years from meteorological department, they have this data. Okay, the direction of wind, they collect this data. The particular direction of wind can be collected by meteorological department. Okay, they usually keeps this data.
So if you select a particular site of your airport, then you will study the data for 5 to 10 years of that particular site, okay, just to identify the proper location of runway. After that, types of wind. Now this is very important: headwind, tailwind and crosswind. We will see one by one what is headwind, what is tailwind and what is crosswind, okay. ये जो विंड डेटा है, ठीक है ना, 5 से 10 साल का कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको रनवे ओरिएंटेशन करना है, सबसे पहली चीज़ है मैप स्टडी। उस एरिया की पूरी मैप स्टडी डिटेल में की जाती है। उसके बाद विंड डेटा पूरा निकाला जाता है, विंड का डायरेक्शन और कितनी देर तक के, कितना टाइम तक के एक विंड जो है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आफ्टर दैट उसकी इंटेंसिटी यानी कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। दीज आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी कलेक्टेड फॉर विंड डेटा। एंड एज यू ऑल नो कि विंड जो है डेटा जो है वो चेंज होते रहता है, तो मटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 5 से 10 साल का डेटा अपने पास रखता है, हमें वो डेटा उनसे लेना पड़ता है। अब उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ विंड, ठीक है ना, विंड किस किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, ये चीज़ देखेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कोई एयरक्राफ्ट ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज एन एयरक्राफ्ट। अब इस एयरक्राफ्ट के अपोजिट साइड में सपोज ये विंड यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है एयरक्राफ्ट, समझ रहे हैं आप। देखिए ये एयरक्राफ्ट है फॉर एग्जांपल, और विंड अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे अगर उसकी जस्ट अपोजिट एयरक्राफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में विंड अगर फ्लो हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड एज हेड विंड। ये हम लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इसका बारे में देखे थे। तो जब विंड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डायरेक्शन फॉर एयरक्राफ्ट, ओके। ये अगर हम इस डायरेक्शन फिर रनवे प्रोवाइड करेंगे, एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन से मूव हो रनवे पे, ये अपोजिट साइड विंड अगर आ रही है, इसे बोला जाता है हेड विंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हेड विंड, ठीक है। हेड विंड बोला जाता है विंड ब्लोइंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेड और नोज ऑफ एयरक्राफ्ट। ये हेड या फिर नोज बोल सकते हैं इसको। इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है तो इसे बोला जाता है हेड विंड, ओके। अब हेड विंड जो है वो बेस्ट इसलिए माना जाता है जब एयरक्राफ्ट यहाँ से जब टेक ऑफ करना चाहता है, ठीक है ना, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने जाता है तो क्या होता है, जो अपोजिट विंग है, ये जो अपोजिट जो विंड है, ये जो विंग्स है एयरक्राफ्ट की, इसके नीचे एक तरह का लिफ्टिंग इफेक्ट डालते हैं जब एयरक्राफ्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि रनवे टेक ऑफ करने जा रहा है अगर, ठीक है। ये जो अपोजिट विंग है इसके एक लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसके विंग्स में, तो उसकी वजह से एयरक्राफ्ट जो है वो लिफ्ट आसानी से हो जाता है, ठीक है। अगर अपोजिट साइड विंड अगर इस पे इफेक्ट करती है तो एयरक्राफ्ट आसानी से लिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसलिए एक तरह का बहुत टेक ऑफ में बहुत इसको इजी हो जाता है टेक ऑफ इसके लिए, अगर विंड अपोजिट डायरेक्शन से आए तो टेक ऑफ में आसानी होती है। उसके साथ साथ अगर सपोज एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करने जा रहा है, ठीक है ना, एक स्ट्रिप पे लैंड करने जा रहा है, तो क्या होगा, विंड जो अपोजिट साइड से फ्लो हो रही है, दैट विंड विल प्रोवाइड ब्रेकिंग इफेक्ट। लैंडिंग के वक्त वो विंड क्या करेगी, इसमें ब्रेकिंग इफेक्ट डालेगी, तो आसानी से एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड हो जाएगा, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट लैंड हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक उसे रनवे पे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रनवे स्ट्रिप ले लो कोई, ठीक है, अब सपोज यहाँ पे विंड डायरेक्शन ये है, इसका अपोजिट है, और एयरक्राफ्ट ही यहाँ से आ रहा है ऊपर से, ठीक है। ये जो एयरक्राफ्ट आया ये अपोज इसको विंड कर रही है, विंड इसको अपोज करी, एयरक्राफ्ट आएगा तो क्या होगा, उसमें ब्रेकिंग इफेक्ट की वजह से वो स्लो हो जाएगा और आसानी से यहाँ पे जाके रुक जाएगा रनवे पे, ठीक है, यहाँ पे रनवे पे आके आसानी से रुक जाएगा, यानी कि ज्यादा दूर तक रनवे पे एयरक्राफ्ट को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा अगर विंड अपोजिट साइड से आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रेकिंग इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से रनवे क्या है, रनवे की लेंथ भी कम हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब रनवे की लेंथ भी हमको कम प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर यहाँ पे ब्रेकिंग इफेक्ट आएगा तो द एयरक्राफ्ट विल रिक्वायर्ड लेस रनवे लेंथ। तो इससे बोला जाता है, जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड प्रोवाइड की जाए, ये रनवे प्रोवाइड किया जाए विंड के, तो क्या होता है, 10% डिक्रीज होता है रनवे की लेंथ में, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल
कोई भी 100 लेंगे आप मीटर, सपोज फॉर एक जस्ट एग्जांपल ले लो, जो भी आपने लेंथ प्रोवाइड की है रनवे की, जो प्रोवाइड करना चाहते थे, उससे तकरीबन 10% रिडक्शन हो जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट भी ऑटोमेटिक फिर कम हो जाएगा। अगर 10% रनवे की लेंथ कम होगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रनवे का ओरिएंटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए विंड ब्लोइंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेड और नोज ऑफ एयरक्राफ्ट, इट प्रोवाइड्स ब्रेकिंग इफेक्ट ड्यूरिंग लैंडिंग एंड ग्रेटर लिफ्ट ऑन विंग्स ड्यूरिंग टेक ऑफ, जैसा मैंने आपको बताया। दस लेंथ ऑफ रनवे गेट्स डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं टेल विंड। ठीक है, टेल विंड क्या होता है ये देखते हैं अब हम। देखिए हेड विंड आपको नाम से क्लियर हो गया, हेड के साथ जो हेड के ऊपर जो विंड आ रही है। अब टेल विंड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट के जो विंड ब्लो होगी, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, कंसीडर द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये एयरक्राफ्ट है और इसकी सेम डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही है, तो इसे बोला जाता है टेल विंड। ठीक है, टेल विंड इज वेरी डेंजरस। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एयरक्राफ्ट को पुल करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा एयरक्राफ्ट पे, तो जो टेक ऑफ करते जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, लिफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एकदम से एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना, लिफ्ट ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जब देखिए विंड विच इज ब्लोन इन द सेम डायरेक्शन एज एन एयरक्राफ्ट, जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब इट इंक्रीजेज स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। जैसे कि एयरक्राफ्ट सपोज लैंड करने जा रहा है, तो क्या होगा, जो सेम डायरेक्शन से विंड आ रही है, ठीक है, सपोज ये एयरक्राफ्ट के सेम डायरेक्शन से विंड आ रही है, ये एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है और ये क्या करेगा, पीछे से क्या करेगा, इफेक्ट और बढ़ाएगा। जब एयरक्राफ्ट लैंड करेगा यहाँ पे, तो पीछे जो जो विंड आ रही है और उसको क्या करेगा, पुश करेगा, तो क्या होगा, एयरक्राफ्ट ज़्यादा रनवे की लेंथ में ट्रैवल करेगा, तो रनवे की लेंथ बढ़ भी सकती है। ठीक है ना, एयरक्राफ्ट को ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, विंड अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लैंडिंग के वक्त भी। ठीक है, लैंडिंग के वक्त वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या होगा, एयरक्राफ्ट को पीछे से पुश मिलेगा और एक्स्ट्रा डिस्टेंस एयरक्राफ्ट को ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए रनवे की लेंथ बढ़ सकती है। इसलिए जो टेल विंड है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डेंजरस एंड ऑब्जेक्शनेबल, दैट्स वाई जब टेल विंड के साइड में डायरेक्शन प्रोवाइड करते ही नहीं है रनवे का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज क्रॉस विंड। क्रॉस विंड, ठीक है ना। अब क्रॉस विंड में क्या होगा, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, क्रॉस विंड मतलब कुछ इस डायरेक्शन में विंड आएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में या वहां से अपोजिट साइड में भी आ सकती है। कोई भी क्रॉस डायरेक्शन में, एयरक्राफ्ट के क्रॉस डायरेक्शन में अगर विंड ब्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस विंड। ठीक है ना, makes an angle with the direction of aircraft movement v sin theta. If the component is more than aircraft may not maneuver safely, generally it should not be more than 25 kmph. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं अभी। जैसे कि आपको समझ गया होगा क्रॉस विंड क्या होता है, हम कंपोनेंट देखेंगे अभी। ठीक है ना, क्रॉस विंड के कंपोनेंट हम डिटेल में देखेंगे अभी। ठीक है, आई होप आपको समझा ये तीन चीज़ें बेसिकली। क्रॉस विंड भी क्या होता है अभी हम देखेंगे डिटेल में और। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्रॉस विंड का डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस विंड, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, क्रॉस विंड कंपोनेंट के बारे में छोटा सा समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये रनवे स्ट्रिप है। ठीक है, एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, सपोज ये एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमेशा क्या होगा कि विंड डायरेक्शन हम जस्ट अपोजिट तो ले नहीं सकते इसके। कई दफ़ा क्या होगा कि विंड इस पर्टिकुलर एंगल पे ब्लो करेगी। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि विंड इसकी जस्ट अपोजिट में आ जाए एयरक्राफ्ट के, विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डायरेक्शन। इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम दैट we can orient runway in this particular direction. It's not possible. So in certain cases अगर क्या होता है, विंड का एक एंगल होता है, सपोज ये एयरक्राफ्ट है ग्रीन कलर में और ये विंड डायरेक्शन है, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, सपोज दिस इज विंड डायरेक्शन। ठीक है, विंड एक पर्टिकुलर एंगल पे आ रही है एयरक्राफ्ट के, तो क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे केस में दो कंपोनेंट आते हैं, विंड के दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है ना, दो जो कंपोनेंट आएंगे हम उसको मार्क कर लेते हैं। जैसे कि एक इस डायरेक्शन में आएगा
इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा जो उसके जस्ट अपोजिट रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और डायरेक्शन आएगा जो कि इसके एक, जो बोल सकते हो आप, क्रॉस विंड कंपोनेंट होगा इसका, लाइक दिस क्रॉस विंड कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्रॉस विंड कंपोनेंट। ठीक है, एक तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आएगा और एक आएगा इसका क्रॉस विंड कंपोनेंट। ये क्रॉस विंड कंपोनेंट कितना होता है, v sin थीटा। ठीक है, ये जो लिखा है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, दिस इज v sin थीटा। ठीक है, जो क्रॉस विंड कंपोनेंट होता है इसकी जो वैल्यू है दैट इज v sin थीटा, याद रखिए। तो ये जो क्रॉस विंड कंपोनेंट जो एंगल से जो विंड ब्लो हो रही थी उसका एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा उसे बोला जाता है v sin थीटा। ठीक है ना। अब ये जो कंपोनेंट है ये जनरली इसकी जो वैल्यू है क्रॉस विंड की, ये 25 kmph से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है कि ये जो कंपोनेंट है, जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है, ठीक है, दिस शुड नॉट बी मोर देन 25 kmph। जनरली इट शुड नॉट बी मोर देन 25 kmph। ठीक है, आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट चीज समझिए, क्रॉस विंड कंपोनेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रनवे ओरिएंटेशन हमने पढ़ लिए। रनवे विल बी ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड मतलब हेड विंड, जो हमने देखे कि अपोजिट साइड डायरेक्शन में जो ब्लो होती है। ठीक है, द एयरक्राफ्ट राइजेज मच अर्ली अबव द ग्राउंड एंड शॉर्टर लेंथ ऑफ रनवे इज प्रोवाइडेड। देखिए अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो जैसे हमने देखिए टेक ऑफ और लैंडिंग में बहुत वो हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं क्रॉस विंड कंपोनेंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया विंड डज नॉट ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे विंड ब्लो होती है, तो उसको हम बोलते हैं वी साइन थीटा। ठीक है ना। क्रॉस विंड कंपोनेंट अभी हमने देखे कि 25 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए द मैक्सिमम परमिसिबल क्रॉस विंड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। फेडरल एविएशन एजेंसी हमने देखे थे यूएस का, जिसने रिकमेंड किया है कि 15 kmph फॉर स्मॉलर एयरक्राफ्ट और मिक्स ट्रैफिक के लिए 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्रॉस विंड कंपोनेंट, जो वी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है ना। उसके बाद अलग अलग बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के 35 तक भी है। ठीक है, अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे, दैट इज विंड कवरेज। विंड कवरेज क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर ड्यूरिंग विच द क्रॉस विंड कंपोनेंट रिमेन्स within the limits as specified by FAA and ICAO। ठीक है, ICAO। ठीक है, ICAO का मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो पूरे वर्ल्ड के एयरक्राफ्ट मूवमेंट पे ये पूरा नजर रखते हैं। ठीक है, FAA जो है फेडरल एविएशन एजेंसी यूएस की, इनके हिसाब से जो भी हमने लिमिट इन लोगों ने फिक्स किया है उसमें जो विंड कवरेज है वो कितना होना चाहिए। मतलब विंड कवरेज का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 95% ऑफ द टाइम, 98% ऑफ द टाइम, 100% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम जो विंड कवरेज है वो 25 kmph से हमेशा 95% ऑफ द टाइम वो लिमिट कम होना चाहिए। ठीक है, परमिजिबल लिमिट जो है वो कम होना चाहिए परसेंटेज ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट, विंड रोज डायग्राम। देखिए विंड रोज डायग्राम एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझ लीजिए इसको। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड इट्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो उसे बोला जाता है विंड रोज। ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम विंड का डायरेक्शन बताएंगे, ड्यूरेशन बताएंगे और इंटेंसिटी बताएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है विंड रोज डायग्राम। इसका जो शेप है वो रोज की तरह है। ठीक है ना, जो फ्लावर होता है रोज उसकी तरह इसका शेप है, इसलिए इसे बोला जाता है विंड रोज डायग्राम। इसमें क्या किया जाता है, विंड डेटा शुड बी कलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स, प्रेफरेबली 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल का डेटा तो भी लिया जाता है। सो एज टू ऑब्टेन एक्यूरेट डेटा, 5 का भी ले सकते हैं लेकिन 10 का जनरली करते हैं ताकि एक्यूरेट डेटा मिले। तो पिछले 5 से 10 सालों का डेटा, विंड डेटा, इसमें एनालाइज किया जाता है। उस विंड डेटा को एनालाइज करके ग्राफ बनाया जाता है जो कि सर्कुलर और रोज के शेप का है। ठीक है, उसमें हम उस विंड का डायरेक्शन कितना था, कहाँ था, ड्यूरेशन कितना था, इंटेंसिटी कितनी थी, ये सारी चीज़ें उसमें पुट की जाती है और उसके हिसाब से हम रनवे का ओरिएंटेशन करते हैं।
ठीक है। डेटा शुड बी कलेक्टेड नियर द साइट सिलेक्टेड एज विंड कंडीशंस वेरी कंसिडरेबली विद लोकेशन। जो आपने एयरपोर्ट की साइट सिलेक्ट की है उसके आसपास का डेटा पूरा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। देखिए विंड डेटा, अ टिपिकल विंड डेटा इज गिवन बिलो। In the table, duration of wind for any one direction covers at an angle of 22.5 degree as shown in figure. It is assumed that wind may come from any point within the 22.5 degree sector. For example, जैसे कि एक डे इसमें डायरेक्शन में आप देख रहे हो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन में अगर विंड ब्लो हो रही है तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इससे 22.5 डिग्री तक के उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर विंड का इफेक्ट आएगा 22.5 डिग्री तक के, ये हमको लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट। आप इस टेबल को थोड़ा सा देखिए। इस टेबल में तीन चीज़ें दिख रही है हमको, दैट इज विंड डायरेक्शन, ड्यूरेशन ऑफ विंड और टोटल परसेंटेज ऑफ विंड। ओके, इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम विंड कितना ब्लो हुई। ठीक है, विंड डायरेक्शन देखिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये पूरे डायरेक्शंस मार्क किए गए हैं। ड्यूरेशन ऑफ विंड यानी कि परसेंटेज ऑफ टाइम, यानी कि एक साल में कितना परसेंटेज ऑफ टाइम इतनी विंड रही। जैसे कि ये इंटेंसिटी है, दिस 6.4 to 25 इज इंटेंसिटी ऑफ विंड, 25 to 40 ये इंटेंसिटी ऑफ विंड है, इंटेंसिटी स्पीड ऑफ विंड। लेकिन ये जो 7.4 है, 5.7 है, 2.4 है, ये क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम, यानी कि एक साल में 7.4% विंड जो थी उसका जो मतलब इंटेंसिटी था वो था 6.4 to 25। आई होप आपको समझे, इसको क्लियर कीजिए कि 7.4 मतलब परसेंटेज ऑफ टाइम इन ईयर, यानी कि एक साल में 7.4% ऑफ द टाइम wind blows with the intensity of 6.4 to 25 with the direction of north। ठीक है, एक पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। सिमिलरली 2.7% ऑफ द टाइम विंड जो ब्लो हुई वो 25 टू 40, 0.2% ऑफ द टाइम 40 टू 60 की स्पीड से विंड ब्लो हुई, और ये उसका एक टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम है। ठीक है, टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, इसी तरह हर एक डायरेक्शन में इंटेंसिटी के साथ उसका परसेंटेज ऑफ टाइम मार्क करेंगे। टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम देखिए 86.5 आएगा। ठीक है, इसका एवरेज जो आएगा 86 पॉइंट, ये इसको हम ऐड करते जाएंगे अगर, तो परसेंटेज ऑफ टाइम देखिए कितना आ रहा है 10.3, 8.1, ये सबको ऐड करते जाएंगे। फिर इनका टोटल एडिशन जो आ रहा है टोटल परसेंटेज दैट इज 86.5। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए विंड रोज डायग्राम दो तरह की है, फर्स्ट इज टाइप 1, सेकंड इज टाइप 2। इनके सिंपल टाइप 1 डायग्राम, टाइप 2 डायग्राम। टाइप 1 डायग्राम शोइंग डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड। टाइप 1 में क्या है, डायरेक्शन है और ड्यूरेशन है विंड का, इंटेंसिटी ऑफ विंड को कंसीडर नहीं करें। टाइप 1 में डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन है, एंड टाइप 2 में डायरेक्शन ड्यूरेशन इंटेंसिटी तीनों है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ है। टाइप 1 में सिंपल शोइंग डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन, एंड टाइप 2 showing direction, duration and intensity. Okay, all three things. So first we will see what is type 1. Okay, type 1 में देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने के बाद डायरेक्शन मार्क किया जाता है, जैसे नॉर्थ 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 वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सब कनेक्ट करेगा ईस्ट साउथ ईस्ट से। इस तरीके से ये रेडियल लाइंस बनाई जाती है। ठीक है, ये रेडियल लाइंस जो है, दिस लाइंस इज विंड डायरेक्शन। जैसे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट से नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर। ठीक है ना, उसके अलावा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। इसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये नॉर्थ के पास है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वेस्ट के पास अगर है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है उसे। ठीक है, जिसके पास है उसका नाम, उसका जो नंबर है वो 2 बार आता है। ठीक है, तो इस तरीके से रेडियल लाइंस बना दी हमने डायरेक्शन। रेडियल लाइंस जो है वो डायरेक्शन है, हम टाइप 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, रेडियल लाइन जो है वो डायरेक्शन हो गई। ठीक है, जो रेडियल लाइन है दैट इज डायरेक्शन। आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 सर्कल आपको दिख रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग है ड्यूरेशन ऑफ विंड।
क्योंकि अभी हमने देखे विंड रोज डायग्राम में सिर्फ दो चीजें मार्क की जाती है। फर्स्ट इज विंड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि कौन से रेडियल लाइंस है। और दूसरी चीज है ड्यूरेशन, यानी कि वो कितना परसेंट उस टाइम पे वो विंड वहां पे ब्लो हुई उस डायरेक्शन में। ठीक है, ईच सर्कल रिप्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ विंड। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, ये सब ड्यूरेशन ऑफ विंड है, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम विंड उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो हुई। ठीक है, अब आपको ये समझ गया होगा। सिंपल समझिए, रेडियल लाइन डायरेक्शन और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्यूरेशन। अब हम वापस इस ग्राफ की, इस डेटा की ओर आते हैं। सबसे पहले देखिए नॉर्थ की ओर 7.4, 2.7 और 0.3 है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ 5.7, 2.1 और 0.3 है। ठीक है, ये इंटेंसिटी के हिसाब से। ठीक है, इंटेंसिटी के हिसाब से। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंटेंसिटी को काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि टाइप 1 में इंटेंसिटी का लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज ऑफ टाइम टोटल हम लेंगे उसमें। ठीक है, ये हम मार्क नहीं करेंगे, परसेंटेज ऑफ टाइम हम डायरेक्ट टोटल लेंगे, टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम, यानी कि एक साल में 10.3 परसेंटेज ऑफ टाइम विंड ब्लो इन नॉर्थ साइड में, 8.1 परसेंटेज ऑफ टाइम विंड ब्लो इन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, 3.9 परसेंटेज ऑफ टाइम नॉर्थ ईस्ट में। इस तरीके से हम मार्क करेंगे। 10.3, 8.1 ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आएंगे। ये जो आएगा डेटा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आएगा, जो कि ड्यूरेशन ऑफ विंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए नॉर्थ साइड में ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग था। देखिए फिर से देखते हैं वैल्यू को। नॉर्थ साइड में 10.3 है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 8.1 है, ये डेटा याद रखिए। तो इसी तरीके से देखिए नॉर्थ साइड में यहाँ से हम कितना मार्क करेंगे, पहला जो सर्कल है देखिए 3, 5, 6, 10, ये जो 10 का सर्कल है इसके पास में आएगा 10। ठीक है, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कितना था, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में था 8.1। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है देखिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 8.1 है, इसमें 10 था। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को हम मार्क करते जाएंगे। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि आप बोलो ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में टोटल परसेंटेज कितना था, टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम 1 है। तो ईस्ट डायरेक्शन में 1 देखिए कहाँ लिया होगा, ईस्ट डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे देखिए 1 लिया है, देखिए 1 का पॉइंट है। नॉर्थ में 10 का पॉइंट है, इसमें 1 का पॉइंट है। ये पहला सर्कल 5 का परसेंट है और दूसरा सर्कल 10 का रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जो बनाया गया है। तो अभी जैसे कि 10 आया तो यहाँ से 10 को मार्क किए, फिर देखिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 8.1 को मार्क किए, फिर ईस्ट डायरेक्शन में 1% को मार्क किए। ऐसा करते करते हर एक पॉइंट को हम मार्क करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मार्क करेंगे इसको 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 इसको, इस तरीके से मार्क कर लिया हमने पॉइंट्स को। फिर जो भी पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे, ये लाइन से, ये एक लाइन कनेक्ट हुई, ये पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, फिर ये पॉइंट से फिर इसको, फिर इस तरीके से ये हम इसके कनेक्ट कनेक्ट करते जाएंगे, कनेक्ट करते गए इस तरीके से कनेक्ट करते गए। और इस तरीके से फिर देखिए ये बन गया शेप, ये जो शेप बन गया। ठीक है, जैसे कि हमने इसको मार्क किए तो ये शेप बना, ये हो गया। फिर इसके बाद जस्ट मैं उसको ओवरराइट कर रहा हूँ, इस तरीके से बनता गया। सारे जो पॉइंट्स हमने मार्क किए कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे उसको कनेक्ट करते जाएंगे। तो सभी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो हमने पॉइंट्स मार्क किए उसको हम कनेक्ट कर दिए, तो देखिए इस तरीके का शेप बन गया। इसलिए इसे बोला जाता है विंड रोज डायग्राम, एक तरह का रोज का शेप। अब आप देखोगे कि ये विंड रोज डायग्राम में हम अब इसका डायरेक्शन मार्क कैसे करेंगे। रनवे का आपने पॉइंट्स तो मार्क कर दिए टाइप 1 में, तो जो लॉन्गेस्ट लाइन इस शेप में दिख रही है आपको, ये जो आपने शेप मार्क की इसमें लॉन्गेस्ट लाइन आपको कौन सी दिख रही है, आपको दिख रही है नॉर्थ से साउथ की ओर। ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट लाइन। तो आपका रनवे का ओरिएंटेशन ये डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, रनवे आप इस डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे, ना कि आप ये इसमें या फिर इसमें या फिर इस तरह की, नहीं। आपको जो लॉन्गेस्ट लाइन जो दिख रही है वो आपका रनवे का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप 1 में मार्क किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है।
ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ रनवे इज यूजुअली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑन विंडरोज डायग्राम, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए एक काम पीरियड करके होता है, जैसे कि इसमें देखिए टोटल परसेंटेज 86.5% ऑफ द टाइम विंड ब्लो ही 6.4 की रेंज से 60 तक के, ठीक है ना। लेकिन 60 के ऊपर हमने कंसिडर नहीं किए, क्योंकि 60 के ऊपर या 80 के ऊपर अगर विंड है तो वो डेंजरस हो जाता है, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं किए। लेकिन 6.4 के नीचे जो विंड ब्लो ही, ठीक है ना, वो होती है काम विंड, या फिर काम पीरियड बोलते हैं उसको, अगर 6.4 की इंटेंसिटी से कम विंड ब्लो हुई। जैसे कि अब टोटल जो विंड ब्लो हुई 86.5, यानी कि 100 में से 86.5, बाकी का कहाँ गया, बाकी का जो विंड था उसे बोला जाता है काम विंड या फिर काम पीरियड, ठीक है ना। काम पीरियड देखिए, परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच विंड इंटेंसिटी इज लेस देन 6.4 kmph इज नोन एज काम पीरियड, डज नॉट इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ लैंडिंग और टेकिंग ऑफ, वो कोई इफेक्ट डालता नहीं है। इसलिए जो काम पीरियड है वो कितना हो गया, 100 माइनस 86.5। 86.5 कैसा आया, 6.4 से लेके 60 तक के का हमने डेटा निकाले, तो 86.5 टाइम जो विंड ब्लो ही वो 6.4 से लेके 60 तक के थी, और 60 के ऊपर कंसिडर करते नहीं है। लेकिन 6.4 के नीचे कितना परसेंटेज ऑफ टाइम था, 13.5। ये परसेंटेज बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। काम पीरियड 13.5 जो है वो काम पीरियड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप 1। आई होप आपको क्लियर हो गया है, बहुत सिंपल था। देखिए टाइप 1 बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करें हमने, ये रेडियल लाइंस बना लिए, ठीक है ना। एक सर्कल बनाया, उसमें रेडियल लाइंस बनाए पूरी नॉर्थ साउथ वेस्ट की तरफ जाने वाली। उसके बाद सर्कल बनाए, सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ विंड। जैसे कि 5% ड्यूरेशन का पहला सर्कल है, 10% ड्यूरेशन का दूसरा सर्कल है। परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर, 5% अगर बोल रहे हैं कि एक साल में 5%, यानी कि उस डायरेक्शन में जो परसेंटेज ऑफ टाइम बढ़ रहा है, मतलब इंटेंसिटी, मतलब उस डायरेक्शन में विंड ज़्यादा फ्लो हुई है। 5% ऑफ द टाइम, 10% ऑफ द टाइम, 100 में से, ठीक है ना। फिर ये परसेंटेज के बाद हमने क्या किए, मार्क किए कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने इंटेंसिटी से विंड ब्लो हुई, तो उसको पॉइंट्स को मार्क किए और उन्हें आपस में कनेक्ट किए, और जो लॉन्गेस्ट लाइन बनी उसे बोला जाता है विंड रनवे का ओरिएंटेशन करना, ठीक है। तो जो बेस्ट जो डायरेक्शन था वो लॉन्गेस्ट लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप 2। देखिए टाइप 2 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं। बस एक चीज क्योंकि इसमें ऐड हो रही है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ विंड। जैसे हमने देखे थे टाइप 1 में क्या था, डायरेक्शन और ड्यूरेशन था। टाइप 2 में क्या होगा, डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ विंड, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखे, ये देखिए टाइप 2 में क्या है, डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑल्सो, तो इसमें एक चीज ऐड हुई, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ विंड। तो अब देखते हैं अगर इंटेंसिटी ऐड हुई तो क्या होगा। ईच सर्कल रिप्रेजेंट विंड इंटेंसिटी। देखिए पहले वाले में क्या हो रहा था, जो सर्कल्स थे वो ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन लेकिन टाइप 2 में ये जो अब सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ विंड। समझ लीजिए दोनों का डिफरेंस। अब जो ये जो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ विंड, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्केल में हम इसको कंसिडर करेंगे। तो अब जो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा टाइप 2 में, ईच सर्कल रिप्रेजेंट विंड इंटेंसिटी, ठीक है। Values in each segment are percentage of time in a year during which the wind having particular intensity blows from respective direction. सिंपल है, मैं सिंपल करके इसको समझाता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट यहाँ पे, पहले जो सर्कल था वो परसेंटेज ऑफ टाइम था, लेकिन अब जो सर्कल है वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जो अब जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ विंड, ठीक है। और डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब जैसे हमने देखे थे, अब जो लाइन मार्क करेंगे आप डायरेक्शन की, वो नॉर्थ बिल्कुल एक सेंटर से 22.5 डिग्री का डेविएशन हमने स्टार्टिंग में देखे, तो बिल्कुल सेंटर लाइन से हम इसको मार्क करेंगे ताकि एक्यूरेसी आए। क्या करेंगे, ये 22.5 डिग्री का जो डेविएशन है, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखे, उसके सेंटर से लाइन को मार्क किए नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसके बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके इस तरीके से सेंटर लाइंस को हमने मार्क करते गए, ठीक है।
इस तरीके से ये देखिए डेविएशन को हमने मार्क किया। अब ये जो हमने पूरा एक अब एरिया कवर कर रहे हैं हम नॉर्थ का, देखिए 22.5 के डेविएशन के साथ हम इस पूरे को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने डायरेक्शंस मार्क कर लिए ताकि ये जो सिंपल जो नॉर्थ है वो बिल्कुल सेंटर में आए। 22.5 को हम इसमें दो इसमें डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये पूरा 22.5 डिग्री का जो डेविएशन है इसको कवर करेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्शन मार्क किए, फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। अब जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ विंड। ठीक है, ठीक है, अब हम इसमें इंटेंसिटी को ऐड करेंगे, यानी कि 6.4 से 25, 25 टू 40, 40 टू 60। तो इसमें अब हम ये जो 7.4 है, 2.7 है, इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि पहला इंटेंसिटी वाला जो सर्कल है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है विंड वेलोसिटी। ठीक है ना, सबसे पहला जो सर्कल है, सपोज हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये 6 का था, 6 की एम्पियर। पहला सर्कल का जो रेडियस है इट विल इंडिकेट द विंड वेलोसिटी, सपोज दिस इज 6 की एम्पियर। ठीक है, दूसरा वाला जो सर्कल है, देखिए ये जो सर्कल है ये है 25 की एम्पियर। फिर उसके बाद वाला जो सर्कल है 40 के एम्पियर, लास्ट वाला है 60 के एम्पियर। तो ये सर्कल जो है वो विंड इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहे हैं टाइप 2 में। ठीक है, पहला 6 है, दूसरा 25, तीसरा 40, फिर उसके बाद 60 के एम्पियर। ठीक है, तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको समझ गया है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं विंड की इंटेंसिटी को, जो रेंज हमने सेट की है 6, 25, 40, 60। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 6, 25, 40, 60 ये रेंज हमने सेट कर दी है सर्कल से। सर्कल्स इंडिकेट्स द विंड इंटेंसिटी। उसके बाद देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में 7.4 है, 6 से 25 के बीच में नॉर्थ डायरेक्शन में 7.4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 6 से 25 के बीच में जो इंटेंसिटी थी वो 7.4 है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे हम, देखिए ये 6 का सर्कल है, ये 25 का सर्कल है, तो इनके बीच में नॉर्थ डायरेक्शन में कितना है 7.4। सिमिलरली 25 से 40 के बीच में 2.7 है, 40 से 60 के बीच में 0.2 है। देख लीजिए, आपको वही वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, 2.7 है, 0.2 है 40 से 60 के बीच में। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब ये जो पोर्शन जो बच रहा है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन बच रहा है इसमें हम एक्चुअल विंड इंटेंसिटी लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे जैसे कि उस पर्टिकुलर टेबल में। ठीक है, ये सारी वैल्यू जैसे कि हमने 7.4 लिखे, 2.7 लिखे, 0.2 लिखे। ठीक है ना, 7.4 6 से 25 के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद 25 से 40 के बीच में 2.7 है, 40 से 60 के बीच में 0.2 है। देख लीजिए, फिर से रिपीट आपको दिखा देता हूँ। 6.4 से 25 के बीच में 7.4 है, फिर 25 टू 40 यानी कि 2.7, 40 टू 60 के बीच में 0.2 है। इस तरीके से हम पूरी इंटेंसिटी को, ये पूरे जो टेबल है इसको यहाँ पे हम जैसा कि वैसा रिप्रेजेंट करेंगे। जो खाली जो पोर्शन दिख रहा है इसमें वैल्यूज को रख देंगे। ठीक है, अभी सारी वैल्यूज आपने रख दी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, सारी वैल्यूज रखने के बाद आप एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप कंसीडर करोगे। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो जो आपका मैक्सिमम रेडियस है ना कि 60 के एमपीएच वाला है उससे ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि दिख रही है आपको। ठीक है, उससे ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जिसकी लेंथ है मैक्सिमम जो रेडियस है 60 के एमपीएच है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी लेंथ हो गई। उसकी जो विड्थ है, ठीक है ना, जो विड्थ है वो अराउंड 50 के एमपीएच के आसपास उसकी विड्थ होती है। ठीक है, 50 के एमपीएच के अराउंड, यानी कि आप बोल सकते हो जैसे कि, ठीक है। उसके बाद देखिए ये विड्थ हो गई उसकी और ये लेंथ हो गई स्ट्रिप की। आप स्ट्रिप को यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब जितना भी आपको स्ट्रिप में दिख रहा है, ठीक है ना, जो डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप में दिख रहा है, जैसे कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया, इन सबको ऐड करते जाएंगे। 0.2, 3.7, 7.4, 9.7, 4.6, ठीक है ना, फिर इसका 0.25, 3.2, 6.3, ये सारों को हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जहाँ पे मैक्सिमम दिखेगा हमको, ये स्ट्रिप को हम बाद में कुछ इस डायरेक्शन में भी फिक्स करेंगे। इस स्ट्रिप को फिर बाद में अगर वैल्यूज बराबर नहीं मिली हमको, तो जो इसकी स्ट्रिप है वो इस तरीके से हो जाएगी। इस डायरेक्शन में स्ट्रिप को रख देंगे फिर बाद में, अगर हमको वैल्यूज नहीं मिल पा रही है तो।
ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यूज नहीं मिली तो स्ट्रिप का डायरेक्शन हम इस तरफ चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिप को अलग अलग डायरेक्शन में रख के मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है ऐड करने के बाद वो निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी स्ट्रिप में आपको ये जितने भी परसेंटेज दिख रहे हैं, जो नंबर्स दिख रहे हैं, सबको ऐड करना है आपको। 4.0, 7.4, 0.2, 0.4, 3.6, 1.8, ये स्ट्रिप में जितने भी आ रहे हैं, ठीक है ना, उसे आपको सबको ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, हम ये 25 को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है, इसे ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज है पॉइंट्स में जो अंदर लिखी है इंटेंसिटी, इन सबको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो भी आपका टोटल आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐड करोगे तो सपोज 60 आया या सपोज 70 आया, 70 आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, 70 जब आया उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें काम पीरियड को ऐड कर देंगे। अगर सपोज ये 70 आया, ये पूरा 70 आया, तो काम पीरियड 13.5 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 83.5 हो जाएगा। काम पीरियड को उसमें ऐड करेंगे तो मैक्सिमम जो ये वैल्यूज आना चाहिए वो 95 से 100 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 95% से 100% ऑफ द टाइम के बीच में आना चाहिए ये जो भी जितनी भी इंटेंसिटी है उसको ऐड करने के बाद। ठीक है ना, 95% के आसपास आना चाहिए। तो हम देखेंगे अलग अलग, अगर इस डायरेक्शन में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे या फिर ये डायरेक्शन कर देंगे। तो अलग अलग डायरेक्शन में हम स्ट्रिप को रखेंगे। ठीक है, जब तक कि ये वैल्यूज हमें नहीं मिल जाते, मैक्सिमम 95 तक आना चाहिए वो। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसका डायरेक्शन फिक्स किया। अगर इस डायरेक्शन में 95% आ जाता तो रनवे का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ की तरफ इस तरफ होता। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिप का यूज करके टाइप 2 में हम वैल्यूज निकालते हैं। आई होप आपको ये समझा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आपको अगर कुछ भी डाउट है टाइप 1 टाइप 2 विंडोज में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।